So Namaskar, welcome to the Vedanta session, and the 11th session is on. So let me welcome all of you to the culmination of this wonderful Vedanta Wisdom program. And we all know that we have made a huge progress in our journey. तो कुछ लोग जो शेयर करना चाहें अपने बेनिफिट्स वो शेयर कर सकते हैं. मेरी पर्सनली बात हो चुकी है ऑलरेडी अनीता जी से, नीता जी से एंड अमित जी से. So anybody else who would like to share? And Tony also. So anybody else who would like to share? क्या benefits मिल रहे हैं? Yes, कंचन जी, please go ahead. Lot of clarity. पहले बड़ा confusion होता था कि अहम ब्रह्मास्मि, what is अहम ब्रह्मास्मि, जो बोलते थे मैं शरीर हूँ, आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, and there's lot of confusion कि ये सब है क्या and how is it affecting me to know all this knowledge. There's lot of clarity उसमें आई है, and then there's an inner peace which is coming when I think in that way. So it's thing is more calmer. Very good. So you got more peace of mind and you understood the ये ब्रह्म ज्ञान है जो हम बात कर रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि. You are talking of the ultimate wisdom of the universe, right? We are talking of how we are existing in this universe. तो universe की existence क्या है, हमारा role क्या है, तो ये सब जब हम सीखते हैं ये ब्रह्म ज्ञान आपको मिल रहा है. तो the more you take this wisdom, obviously it is going to give lot of mind का कचरा जो है वो निकल जाएगा बाहर, तो आपको automatically peace of mind मिलेगा. So that is what you are experiencing and it is very very profound. So good. Now as it applies in your life, जैसे जैसे life में apply होने लगेगा, you will find more happiness and joy in your relationships. You will feel more healthy and you will also feel new opportunities coming to you in terms of finance and income or property or whatever is in your mind. Correct? तो आप अपने desires को fulfill कर पाएंगे and you will be on the forward journey of self-realization. That means moving forward on the spiritual journey to attain self-realization. So welcome to the journey and enjoy your journey. Thank you. Yes, who else wants to say? Sanjay, anything you want to share right now? Yeah. So good morning, everyone, first of all. And I wanted to start with a frank confession, maybe. In the last three hours, you guys were all with me because I was watching the last 3 recordings of the Wednesday session, right from the 5th January, which I had missed out. तो अगर कोई मेरा टेस्ट लेना चाहे तो मैं बता सकता हूँ कि अनीता जी is attached to the law of acceptance, right? Tony and Neeta ji knows that what a relationship means. It's a connection and affection and responsibility, right? And we have to leave out the attachment part, which actually I had the question, so does that mean that relationship is governed by affection only? I mean, apart from connection, and we have to cut out the attachment. So I think those were some of the questions burning in the mind. But anyway, I'm sure when we go ahead, we will fathom that and unfathom that going forward in the journey. But this was just to show how deeply connected now I am, even though I am invisible. In today's technology, even the Zoom or the recorded sessions can really help connect you and also linger with you going further. So so how this journey is transforming me? Yes, I think मेरे को वैसे तो सारा पॉइंट बहुत अच्छा है, लॉस एंड धीरे धीरे करके मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड एज अनीता जी पॉइंटेड आउट दैट पिक अप वन लॉ, राइट, and go deeper into it and start practicing it, it works out totally transformation. And there are so many aspects she has been able to bring out while depicting law of acceptance. Even today, I just joined a bit late and I could hear कि मतलब कोई सीमा खत्म नहीं होती उसकी, मतलब कितना डीप जाओ, कहाँ रिलेशनशिप में ले जाओ, मतलब किस एंगल पे ले जाओ, कहाँ उसका मतलब खत्म नहीं हो रहा है. सो मेरे को लेकिन जो सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट वीक लगा था, when you said and when this realization has come that we are 3 separate layers, as I was telling, right? Soul, mind, as well as the physical body. The very realization of this, that we are 3 separate layers, brings in control on the emotional part, or various activities are happening in the past, present, as well as will happen in future. तो वो जो emotional part आता है,
It can be happiness, it can be regret, it can be fear, it can be going ahead with that, the opposite of it. वो पार्ट पहले कंट्रोल नहीं हो रहा था और हम उसके साथ अटैच थे एक तरह से. आई थिंक ये जो डिमार्केशन आया है तीनों लेयर का कि मैं सोल हूँ, माइंड अलग है, बॉडी अलग है, और माइंड में हो रहा है, उस लेयर पे हो रहा है, तो मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ. और ये इमोशन सही नहीं है, इसको मुझे छोड़ना है, इसको लेके इससे मुझे अटैच नहीं होना है. और वरना मैं यही फिल्टर लगा के या यही लेंस लगा के उस बंदे को देखूंगा या उस पूरी दुनिया को देखूंगा बेस्ड ऑन द पास्ट ट्रांजैक्शन. So I think that also, this one is becoming a more transformative, and I am trying to get more deeper, which is making me feel that मेरे around चीजें हो रही हैं, जैसे my favorite topic, corporate life, right? So उसके around हो रही है चीजें, वहाँ कुछ चीजें अनुकूल हो रही हैं, कुछ चीजें प्रतिकूल हो रही हैं. मैं ट्राई कर रहा हूँ और उसको छोड़ रहा हूँ. Leave it. Let the Almighty Divine intervene and take care and let it find the right end. Okay, fine. But I am not leaving any karam untouched there. So ये वाली feeling बड़ी अच्छी आ रही है. And I think as we go further, which is keeping me cool, calm, and not undisturbed. So I think that's what I wanted to share, with all of you. That even though I am not visible with you or with you physically, but I am deeply connected. Absolutely perfect, Sanjay. Very good, very good. So number one, you're also watching the Wednesday recording, so that came out very beautifully, right? And yes, तो अटैचमेंट यहाँ पे कम होगा, कैसे कम होगा, वही हम बात कर रहे हैं. जैसे ही आप अपने बॉडी और माइंड के बीच में थोड़ा सा गैप लाएंगे, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, यू आर थ्रू विद यू आर ऑन द राइट जर्नी. क्योंकि वहां पे आप थोड़ा सा गैप क्रिएट कर लेंगे और अपने आप को उनसे अलग देखेंगे. यही है जो जर्नी है जो आपको सोल कॉन्शियसनेस में लेके जाएगा. क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस से जैसे ही आप हटेंगे, यू विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द सोल कॉन्शियसनेस, एंड दैट इज द राइट वे टू मूव हेड इन द जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन. करेक्ट. और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ धर्मा, और उससे कनेक्टेड जो टॉपिक्स होंगे, जो टर्म्स होंगे, वो हम डिस्टिंग्विश करते हुए जाएंगे. तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, जब आप वर्ड सुनते हैं धर्मा, तो धर्मा बोलते, कोई धर्म बोलते हैं, पर ये म पूरा है, तो धर्म बोल सकते हैं. तो whichever way we pronounce it. So when you hear this word dharma, what comes to your mind? जनरल टर्म्स में जब हम बात करते हैं, तुम्हारा धर्म क्या है बोलेंगे तो क्या बोलोगे आप? Yes, Tony, go ahead. See, dharam does not only mean religion. It doesn't mean religion at all. Yeah, so मतलब if somebody says कि हमारा धर्म जो है एक particular religion है, वो it is not that. It is basically your doing towards yourself and to others. जो आप कर्म करते हैं वही आपका धर्म मेरे हिसाब से होता है. वो मतलब what you do unto others and to yourself. Okay, so I will not agree with you, I will not disagree with you right now. That is your interpretation, that is fine. So you saying my karma, जो मेरे कर्म है वही मेरा धर्म है. Yeah. Okay, so that is your perception about it. That's fine. Anybody else who would like to share? What exactly? I would not say my karma, but जो मेरे actions हैं वो मेरा धर्म होता है. वो कर्म है तुम्हारे, जो तुम्हारे actions है वो तुम्हारे कर्म है. But you can say yes, my karma is a representation or a symbolic presentation of my dharma. That's fine. I understand that. Yes. और कौन बोलना चाहेंगे? I would say responsibility. My responsibility is my dharma. जो मुझे करना है, that is my dharma. वो accountability है. Yes, good. Accountability or responsibility is good. It has to be connected to the dharma, but then first of all we have to distinguish what is dharma. तो accountability थोड़ा सा अलग है, but yes, your perception of dharma is accountability. I understand that, which is good enough. हाँ जी, और कौन बोलना चाहेंगे? Yes, Gaurav ji. According to me, when your karma connected with divine, that becomes the dharma. When your karma are connected with the divine, you become karma yogi. That becomes the dharma, that what is you are doing, what is expected, like what you should do is what you are doing. So what you are And expected you are to doing do something, is what is you say is dharma, correct? what is expected by the divine, if you're doing, that is a dharma. If that is something which is not expected and you are doing, that is not a dharma. That is Okay. a dharma.
Okay, got it. So that is your definition of dharma and adharma. Perfect. And this is personal for everybody. Huh? It is individual. तो कोई ऐसा स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि धर्म का मतलब यही है. सबका अपने अपने हिसाब से आप अपनी जर्नी में हो तो सब अपने अपने धर्म के हिसाब से अपनी अपनी डेफिनेशन भी धर्म की वैसे ही बनाओगे. Okay, so which is perfect, which is absolutely okay. हाँ जी अनीता जी. सर जैसे हम बोलते हैं कि हमें धर्म के रास्ते पे चलना है, तो विवेक पूर्ण हम सही विचार को लेके अपने जीवन को आगे लेके चलें, तो मुझे लगता है कि वो भी एक तरह से हम धर्म कह सकते हैं उसको. Okay, तो आपका मतलब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है, आपकी जो साधना है, that is a representation of your धर्म, correct? बिल्कुल सही, सही है, ये भी सही है. हाँ जी, और कौन बोलना चाहेंगे? संजय. पहले तो धर्म सुनते साथ ही मेरे को युधिष्ठिर का नाम याद आता है. I don't know why. धर्मराज, हाँ. Right. The way I understand is dharma is mission. What is your mission or goal? I mean, which is linked to your goal. Okay. And karma is action which realizes your mission or exhibits your mission. It should be in that direction. So mission could be connected with divinity, end of spiritual journey. I mean, writing high on the spiritual journey, or manavta, or anything. These are all facets of the same points. Okay. So going by the same, you can say same argument or the same theory. Each individual person will have a different dharma, correct? Each individual can, yeah. It's essentially, I mean, if you boil down at a very high level, it will be the same. It's a different facet of he sees. Like manavta ek dharam hai, right? Sahi raaste pe chalna ek dharam hai. Connected with divinity, I think Gaurav ji pointed out, it's a dharam. I mean, ye sahi karma hai, but wo sahi ki definition can change, right? Within the person judgmental. So it can go like that. But if you essentially boil down to the, to the central point, it is a mission. What do you stand for here, or what do you represent? So it's somewhere connected with a goal or a mission. Okay, got it. Perfect. तो वो भी सही है आपकी तरफ से. So, and let me tell that again. Everybody is right. There is nothing wrong. कोई wrong answer नहीं है इसमें, कोई right answer नहीं है. It is what you say is right for you is your dharma. Okay, I'll explain. I mean more about it later. हाँ जी, और कौन बोलना चाहेंगे? नीता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपके हिसाब से धर्म क्या है? उसके बाद जी. मेरे हिसाब से जो हमने लॉ ऑफ यूनिवर्स पढ़ा है, लॉज ऑफ, अगर हम उसको हर तरीके से फॉलो करते हैं तो जस्टिफाइड वे में, अपने हिसाब से जस्टिफाइड वे में, तो वही धर्म होगा. Okay, got it, perfect. So following the divine rules, you can say, or the universal laws, that is your dharma. That's fine. Amit ji, आप क्या बोलेंगे? I think building all the same thing which Neetaji has mentioned. So according to me, any belief or action which is in line of the spiritual journey, which is in line with the spiritual journey in the same direction, Yeah. is dharma. And at times karma may be a misrepresentation of dharma. So dharma is any belief or action towards what the goal of spirit is, our own individual spirit. Okay, perfect. That's my view. Very good. So everybody has some understanding of what dharma is, correct? And all of you are right, by the way. And All I of don't know you are if you right. can. Yeah. But at the same time, do you think that हर एक का धर्म अलग हो सकता है? एक universal coming to धर्म तो common ही होगा शायद. I'm coming to it. Yeah. Okay. So let's acknowledge everybody for their perception, right, or the reality that they are living in. Now let me tell you what dharma is. Okay. Now, पानी का धर्म क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं पानी का धर्म क्या है? You have to look at it from the universe point of view, correct? पानी का धर्म क्या है? गीला करना. Let's take it one way, ठीक है? या प्यास बुझाना, जो भी है. That is the intrinsic basic nature. चाहे वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, एशिया में हो, यूरोप में हो, पूरे पृथ्वी में कहीं भी हो, पानी का धर्म चेंज नहीं होगा. Basic intrinsic nature. Clear? आग का नेचर क्या है? आग का धर्म क्या है? जलाना. गरम करना. हाँ, गरम करना, जलाना, जो भी है, राइट? बर्ड्स का बेसिक नेचर क्या है? फ्लाई इन द एयर. फिशेस का बेसिक धर्म क्या है?
swim in the water, correct? So there is some basic design. They are one life form has a particular design which the creator has made you in that form. Clear है यहाँ तक? Everybody connecting with it? तो यूनिवर्स में जो कुछ हो रहा है, जिस मर्जी लाइफ फॉर्म को हो, चाहे वो आग हो, पानी हो, एयर हो, स्पेस हो, पांचों एलिमेंट्स का एक पर्पस है, यानी कि एक पर्पस ऑफ बाय डिजाइन है, विच यूनिवर्स हैज क्रिएटेड और द क्रिएटर हैज गिवन इट. सिमिलरली बर्ड्स का एक धर्म है, फिशेस का एक धर्म है, राइट? सिमिलरली ह्यूमन बीइंग का भी एक धर्म है, वन धर्म, चाहे वो इंडिया में हो, वो पाकिस्तान में हो, या वो फिर वो यूएस में हो, जहां मर्जी हो. ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव वन बेसिक धर्म, वन इंट्रिंसिक नेचर. वो क्या है वो क्लियर होना चाहिए हमको. दैट इज व्हाट वी आर कमिंग टू. ठीक है? तो नंबर वन, दैट नेचर एज अमित जी राइटली सेड, धर्म फॉर ए पर्टिकुलर स्पीशीज will be designed by the universe, so it has to be the same, right? तो basic nature अगर मैं पूछूं ह्यूमन बीइंग का बेसिक नेचर क्या है, इंट्रिंसिक नेचर which is common to all the human beings, क्या होगा? I think मोक्ष प्राप्त करना. वो तो वहां तक पहुंचने का वो हो गया ना. मोक्ष इज ए प्रोसेस टू रीच दैट नेचर. वो बेसिक नेचर को रियलाइज करना और वहां तक पहुंचना, दैट पाथ इज कॉल्ड मोक्ष, और वो दैट स्टेज इज कॉल्ड मोक्ष. जब वो पहुंच जाएंगे वहां पे तो आपको मोक्ष मिल गया. तो वो क्या है? हाँ, महसूस करना. महसूस करना क्या? फीलिंग को, हर चीजों को, बातों को महसूस करना, समझना. सो ओके, यू विल यूज दैट अवेयरनेस एंड द कॉन्शियसनेस व्हिच यू आर सेइंग, फीलिंग, अवेयरनेस जो भी आ रही है आपको, वो आपको बताएगा कि आप सही रास्ते पे हो या नहीं. इंसानियत भी हो सकता है बेसिक. ओके, सारे. भगवान का नेचर क्या है? लेट मी टेल मी दैट. परमात्मा का नेचर क्या है? दया करना सब पर. बेसिक नेचर वो तो करना है, करना. परमात्मा कुछ करते नहीं है वैसे, बाय द वे. परमात्मा का एक नेचर है, क्या है वो? डिविनिटी. डिविनिटी किस हिसाब से, किस फॉर्म में दिखता है? वी हैव डन ऑल दिस. बीइंग फॉर्म में, बीइंग फॉर्म में. लव एंड हैप्पीनेस. Okay, let me give anybody else who would like to say that, because if I get the answer then I don't have to say it. You know it. So love, peace and happiness. Spreading. You are close. Love, peace and happiness. Joy, yeah. So spreading that, I mean, that's the intrinsic nature of soul, right? So correct. So परमात्मा और आत्मा का बेसिक धर्म सेम है, मानते हैं ना? बेसिक नेचर, इंट्रिंसिक नेचर सेम है, और सत, चित, आनंद. Yes. ठीक है? I wanted to hear this. So anyway, that you are close, Sanjay. So that's fine. Yeah. तो सत, चित, आनंद जो है, ये बेसिक नेचर है ना हर ह्यूमन बीइंग का. वो माने या ना माने, वो जाने या ना जाने, बेसिक ह्यूमन बीइंग का नेचर वही है, राइट? लाइक काऊ का नेचर क्या है? काऊ का धर्म क्या है? नेचर में और धर्म को मैं एक ही चीज मान रहा हूँ, क्योंकि इंट्रिंसिक नेचर को ही मैं धर्म मान रहा हूँ. दैट इज एक्चुअली द डेफिनेशन. इफ यू टेक ए स्पीशीज काऊ, anywhere on this planet Earth, the cow will eat grass and give milk. Clear है ना? Irrespective of the color of the cow. ऐसे नहीं है कि white cow है तो white दूध देगी, हाँ, तो काली गाय होगी तो काला दूध नहीं देगी, वो दूध white ही होगा, राइट? तो घास खाएगी और दूध देगी, ये गाय का धर्म है. शेर का धर्म क्या है? हिरण को चीर फाड़ के खा जाना, eating flesh, killing animals and eating flesh, ये शेर का धर्म है. अगर शेर घास खाने लग गया, जैसे अभी अमिता जी ने बोला था, तो वो अपने धर्म के विरुद्ध काम कर रहा है. और अगर गाय झपट्टा मार जाए हिरण पे और उसको मारने लग जाए, तो वो अधर्म हो जाएगा. तो धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है अपने बेसिक इंट्रिंसिक नेचर को पहचानना और उसको एक्सप्रेस करना. दिस इज धर्म. एवरीबॉडी कनेक्टिंग विथ मी? कोई डिस्कनेक्ट तो नहीं है? ठीक है. नाउ इन द लोअर स्पीसीज, हाँ गौरव जी कुछ बोलना है? हाँ, जो आपने बताया ना सत, चित और आनंद, ठीक है, उसको एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दीजिए, so that I will be able to connect 100%. सत is truth. Okay. चित means awareness. आनंद is blissful. तो बेसिक नेचर है ना ये परमात्मा का. सत, चित, आनंद बोलते हैं, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद.
सत तो चित आनंद, मैं अगर बाकी इटर्नल स्पीसीज ब्लिस की बात करूं, कॉन्शियसनेस। ओके, अगर मैं बाकी स्पीसीज की बात करूं, जैसे कि मान लो कोई बर्ड है, ठीक है, तो वो हमेशा ट्रुथ में रहता है, दे डोंट नो हाउ टू नहीं लाई, नहीं नहीं, डोंट गेट इनटू दैट, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए है, ये आत्मा और है ना, परमात्मा के लिए है और सिर्फ। आनंद में भी रहते हैं वो। एक मिनट, हम्म, कम बैक, आगे नहीं बढ़ना है। ये परमात्मा और आत्मा की बात कर रहे थे, सच्चिदानंद। बाकियों का मैं बता रहा हूँ अभी। गाय का धर्म क्या है? सिंपल सा अगर मैं अंडरस्टैंडिंग लूं, जो गाय को हम जानते हैं घास खाती है और दूध देती है, एवरीवेयर इट विल डू द सेम थिंग। ये गाय का धर्म है। शेर का धर्म क्या है या राइट, टाइगर का धर्म क्या है? क्लियर है ना सबको? वो इट विल क्लियर बी है द मेरे को, सेम राइट, ऑलवेज। एक स्पीशीज का एक धर्म है, और ये सब हार्ड वायर्ड है। हार्ड वायर्ड क्यों है? बिकॉज दे ऑल देयर ऑर्गन्स आर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओनली ह्यूमन बीइंग्स हैव देयर ऑर्गन्स इन ए वर्टिकल प्लेन। क्यों? दोबारा बोलिएगा। ऑल द एनिमल्स, जितने भी और जीव जंतु हैं, सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में उनका स्पाइन रहता है, बैकबोन रहता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में their awareness cannot go, they are hardwired into doing that only. A cow cannot become an elephant. एक चूहा हाथी नहीं बन सकता है, लेकिन इंसान चूहा भी बन सकता है, चूहा बन के भी जी सकता है और हाथी बन के भी जी सकता है ना। हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, we grow in our awareness. Human beings have this awareness and consciousness, जो अनीता जी ने बोला, जिससे कि वो चूहे से गॉडजिला बन सकता है। तो अपने रियल नेचर को पहचानने के लिए उसे अवेयरनेस को यूज करना ही पड़ेगा, और फिर वो नीचे से ऊपर उठता है। नीचे से ऊपर उठने का मतलब क्या है? लोअर चक्रा से हायर चक्रास में उठता है, और फिर वो क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्रा के कॉन्शियसनेस में पहुंचेगा। इसीलिए उसको वर्टिकल बनाया है। इसीलिए सारे चक्रास हमारे वर्टिकली अलाइंड हैं। बाकी सारे स्पीशीज के चक्रास आर अलाइंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। They will not rise higher than that. Elephant will remain elephant. Tiger will remain tiger. It has no freedom or a choice to behave otherwise. लेकिन इंसान चूहा बन के भी जी सकता है, शेर बन के भी जी सकता है ना। बॉडीली चेंज नहीं होगा, लेकिन बाय नेचर ही कैन चेंज, राइट। एक शीप था, देखा हमने वेदांता स्टोरी में, एक शीप कैसे लाइन बनता है, राइट। तो that awareness and that choice is there with human being. तो ह्यूमन बीइंग को अपनी अवेयरनेस से अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ा के ऊपर लेके जाना है, so that he thinks from his head. तभी हेड ऊपर है ना, पाँव नीचे है, या रूट चक्र नीचे है और क्राउन चक्र ऊपर है। अवेयरनेस में जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे, आप अपने रियल पोटेंशियल को पहचानोगे, आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को पहचानोगे, right? So to know your real nature and then to experience and express that nature, that is dharma. In other species, realize करने की जरूरत नहीं है, because they cannot move, they cannot change, they cannot improve upon that. तो वो अपना basic nature express करते हैं without any problem. पैदा होते ही गाय वही करेगी जो उसको करना चाहिए, फिशेस वही करेंगे, बर्ड्स वही करेंगे। तो हर जीव अपने हिसाब से हार्डवायर्ड है, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग्स अपनी अवेयरनेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो अपने सही पोटेंशियल को पहचान नहीं पाएंगे, और फिर अपनी लाइफ को वो कम पोटेंशियल पे जी सकते हैं। इसीलिए अलग अलग जन्म लेके हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं, अपने रियल सेल्फ को पहचानते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन जिसे बोलते हैं, और फिर अपने सही पोटेंशियल को एक्सप्रेस करते हुए अपने रियल नेचर को एक्सप्रेस करते हैं। वो धर्म है, और अगर वो ये नहीं कर रहा है तो वो अधर्म है। तो इट हैज नथिंग टू डू विथ रिलीजन, हिंदू मुस्लिम, दैट इज नॉट व्हाट धर्म इज। राइट एंड रॉन्ग इज नॉट व्हाट धर्म इज। व्हाट मूव्स यू फॉरवर्ड ऑन द स्पिरिचुअल जर्नी, दैट इज धर्म, जो हमने बहुत लोगों ने बोला। And what stops you from moving ahead in the spiritual journey is adharma. क्यों? क्योंकि आपका बेसिक नेचर अभी आपने सीखा ही नहीं है क्या है। जब तक बेसिक नेचर को एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस नहीं करोगे, आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, लेकिन धर्म अभी तक आपको पूरा एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस नहीं हुआ है।
मेकिंग सेंस? इसीलिए सेल्फ रियलाइजेशन को इतनी इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि जब आप सेल्फ रियलाइजेशन पे पहुंचोगे, मोक्ष का मार्ग खुलेगा आपका, वहीं पे मोक्ष मिलेगा आपको, तब आप अपनी असली पावर को पहचानोगे। फिर आप अपनी अकाउंटेबिलिटी से एक ऐसा काम करोगे जो जगत का कल्याण होगा और उनका कल्याण कर पाओगे। मेकिंग सेंस? And then when you express that nature, you are on the path of dharma. Otherwise, you are not on the path of dharma. आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन अभी वहां पहुंचे नहीं हो। तो अभी हम सब WIP हैं। किसी को सेल्फ रियलाइजेशन नहीं मिला तो हम सारे उस रास्ते पे चल रहे हैं। तमोगुण पार कर लिया, रजोगुण पार कर लिया, सतोगुण में पार कर रहे हैं, और उसके बाद हम निर्गुण स्टेट पे जाएंगे। निर्गुण स्टेट पे सच्चित आनंद को एक्सपीरियंस करेंगे, अपने सही स्वधर्म को पहचानेंगे। उसके बाद हम जो करेंगे वो हमारी एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी का एक्सप्रेशन होगा। How many of you are connecting with me? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? I have a question also. Yes, but let me first check who all are agreeing with me or understanding. सबको समझ में आया? Yes, go ahead, Gaurav. तो मैं जैसे देख रहा हूँ ह्यूमन बींग्स में और बाकी स्पीसीज में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है अवेयरनेस। क्या है? they don't have awareness. हाँ, they don't Human have being is having awareness, right? तो एक वो है जो डिस्टिंग्विश करता है ह्यूमन बींग्स को, राइट? बाकी जो जितनी भी स्पीसीज हैं वो बिकॉज अवेयरनेस नहीं है उनके पास, दे आर डूइंग देयर धर्म, वो कभी अधर्म करते ही नहीं है, ऑलवेज इन धर्म, राइट? इन ट्रुथ एंड इन हैप्पीनेस, ऑलवेज। ट्रूथ और हैप्पीनेस नहीं बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे सच्चित आनंद वाला कंसेप्ट नहीं आता। हाँ, क्योंकि चित्त तो है नहीं वहां पे, राइट? वहां पे चित्त है, चित्त फिक्स्ड है, सत फिक्स्ड है, हाँ, ब्लिस का भी एक नेचर फिक्स्ड है, उनका फिक्स्ड ना, हार्ड वायर्ड है ना वो, तो वो एक हाँ, पर्टिकुलर लेवल के सच्चित आनंद में बंधे हुए हैं, वो चेंज नहीं कर सकते। राइट राइट राइट, तो वो चेंज नहीं कर सकते, दे आर ऑलवेज इन धर्म। ये अधर्म का प्रॉब्लम आता ही ह्यूमन बींग्स में है जहाँ पे अवेयरनेस है, एक काइंड ऑफ ड्रॉबैक ऑफ अवेयरनेस है और चॉइस है। और ड्रॉबैक ऑफ अवेयरनेस ही है ये, ठीक है, अवेयरनेस अच्छा है कि आप मोक्ष तक जा सकते हो, पर ड्रॉबैक भी ये है कि यू स्ट्रगल टू बी इन धर्म ऑलवेज। एब्सोल्युटली, और इसीलिए बहुत सारे जन्म आपको मिल रहे हैं, जैसे बहुत सारे अटेम्प्ट मिलते हैं ना 10th स्टैंडर्ड पास करने के, वैसे बहुत सारे जन्म मिलेंगे। कुछ जन्म में आप तमोगुण में अटके रहेंगे, कुछ जन्म में आप रजोगुण में अटके रहेंगे, कुछ जन्म में आप सतोगुण में अटके रहेंगे, लेकिन मूवमेंट होती रहेगी आपकी। और जब आप मूवमेंट करना शुरू कर देंगे तो सतोगुण को भी पार करके एक न एक जन्म में आप निर्गुण पर पहुंचेंगे, सेल्फ रियलाइज हो जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी पूरी मिल जाएगी, 100% अपने आप को पहचान जाएंगे, और अपने पूरी पोटेंशियल के साथ आप फिर जगत कल्याण के लिए कुछ कर सकेंगे। दैट इज वेयर यू टेक अकाउंटेबिलिटी, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएट सम मेजर कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी। जैसे आज की डेट में हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट युग परिवर्तन, जहां हम सतयुग की बात कर रहे हैं, तो जिसने अकाउंटेबिलिटी ली है उस प्रोजेक्ट को चलाने की, he self realized, that is why he is taking up that accountability. Otherwise it is like saying that मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं तो 5 साल का बच्चे के साथ अपना टीटी खेल के जीत रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी उतनी है ना, मैं उतने में ही खुश हूँ। क्यों? मेरे को मालूम ही नहीं है कि मेरी पोटेंशियल क्या है। मैं 5% पोटेंशियल पे काम कर रहा हूँ, तो 5% पोटेंशियल के ही रिजल्ट दूंगा। जब मैं अपनी 100% अकाउंटेबिलिटी को समझ जाऊंगा तो मैं उस हिसाब से प्रोजेक्ट्स चूज करूंगा, और फिर मैं उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन भी करूंगा। करेक्ट? आपने ये सुना होगा ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज एक्चुअली द अदर वे अराउंड। यू टेक बिग अकाउंटेबिलिटी, यू गेट मोर पावर। तो लाइफ में अगर आपको पावर चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी इनफाइनाइट पावर्स हैं आपके अंदर। इफ यू आर डिवाइन, यू डोंट हैव एनी डर्थ ऑफ पावर, करेक्ट? आप डिवाइन हो तो आप इनफाइनाइट पावर्स हैं आपके अंदर। As you take on more accountability, you will get more power out of you. तो आप ज्यादा पावरफुल होते हुए आगे बढ़ेंगे। Making sense? कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं? इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन जरूरी है। सेल्फ रियलाइजेशन सिर्फ इसलिए नहीं है कि है सब छूट जाएगा तो मैं लाइफ कैसे जीऊँ, उसके बाद असली लाइफ जियोगे। जब आप अपने 100% पोटेंशियल को पहचान जाओगे, अपने अंदर की पावर्स को पहचान जाओगे, फिर जो आप सोसाइटी में करोगे, जो जगत में करोगे,
वो होगा असली चीज, जैसे शिवानी जी कर रही हैं या सदगुरु जी कर रहे हैं या फिर गुरुदेव कर रहे हैं। जितने सेल्फ रियलाइज सोल्स हैं वही तो पृथ्वी पे कुछ कर सकते हैं, बाकी सब तो कुछ करने की हालत में नहीं, वो तो अपनी ही हेल्प नहीं कर पा रहे, और उनकी क्या करेंगे। हम अपनी सफरिंग और मिजरी में जूझे पड़े हैं, हम लाइफ के औरों के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो जब आप सफरिंग और मिजरी से फ्री हो जाओगे, अपनी सेल्फ रियलाइज स्टेट में पहुंच जाओगे, अपने इनफाइनाइट पावर्स को पहचान पाओगे, तब आप लाइफ में कुछ कर सकते हो ना औरों के लिए। करेक्ट? मेकिंग सेंस? वो धर्म है आपका। So that is dharma, and it is same for all human beings. Now the question is, having understood what dharma is, how do you apply that in your life? Law of dharma को apply कैसे करेंगे? Okay? अब यहाँ पे आपको अवेयरनेस के साथ साथ एक चॉइस भी मिली है। चॉइस को भी इस्तेमाल करोगे आप। कैसे इस्तेमाल करोगे चॉइस को? सचिन तेंदुलकर decided that he is very good in cricket, and he is going to make a huge contribution in form of cricket. So he chose to be a player. अब उनका purpose of life क्या हो गया? This a human being has to decide for himself depending on his strengths, depending on his powers, depending on his capacities. So Sachin Tendulkar decided, I am going to play cricket. So playing became his purpose of life. ठीक है? एक साइंटिस्ट है, वो कहेगा इन्वेंशन इज माय चॉइस। करेक्ट? मेकिंग सेंस? अमिताभ बच्चन सेड एक्टिंग इज माय चॉइस, तो उन्होंने अपना वो पर्पस ऑफ लाइफ बना लिया। कोई बिजनेसमैन है, वो कहता है गिविंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू पीपल इज माय चॉइस, हाउ आई एम गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू पीपल। तो अपना पर्पस ऑफ लाइफ हमने चूज करना है बाय अवर पावर ऑफ चॉइस and of course awareness. Now मेरे skills healing है, I have become a spiritual healer, or I have started become a teacher where I am teaching Vedanta and healing programs. Correct? Now some of you are IT experts, तो आपने वो चूज किया और वो पर्पस ऑफ लाइफ बना लिया कि मैं इस स्किल से मैं लोगों को कंट्रीब्यूट करूंगा, which means what are you good at? That is your occupation. कोई फार्मर है, he says I will grow crops, ये मेरा ऑक्यूपेशन है। ठीक है? अब वहां पे अपनी हाई पूरी पोटेंशियल के साथ करे या ना करे, जैसे जैसे वो अपना सेल्फ रियलाइजेशन स्टेज पे जाएगा उसकी पोटेंशियल बढ़ती जाएगी। बट बेसिक धर्म वही है, टू एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस सत चित आनंद। एक्सपीरियंस योर रियल नेचर एंड एक्सप्रेस योर रियल नेचर। और वो करने के लिए आप अलग अलग फील्ड चुन सकते हैं, क्योंकि आपके पास चॉइस है जो और जीवों के पास नहीं है। तो कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई प्लेयर बनेगा, कोई क्रिकेट में प्लेयर बनेगा, कोई सिंगर बनेगा, कोई डांसर बनेगा, कोई एक्टर बनेगा, कोई बिजनेसमैन होगा। मेकिंग सेंस? इसीलिए हर इंसान का पर्पस ऑफ लाइफ एक यूनिवर्स क्रिएट करता है और एक आप खुद क्रिएट करते हो। तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए दो तरीके से आप देख सकते हो पर्पस ऑफ लाइफ है। एक अपना बेसिक नेचर को एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस करना, विच इज डिजाइन बाय द यूनिवर्स, और उसको आप सेल्फ रियलाइजेशन स्टेट तक लेके जाना। दूसरा, टू एक्सप्रेस व्हाट यू आर गुड एट, और हम सब अपनी किसी एक न एक स्किल में माहिर हैं, वो पता लगाना। व्हाट इज योर पैशन, व्हाट आर यू गुड एट, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके बेसिस पे आपने एक अपना ऑक्यूपेशन चुना है या अपना कोई बिजनेस चुना है या अपनी कोई एक्शन चुना हुआ है, जिससे कि आप लोगों में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। somebody can say I am very good in comedy, बहुत अच्छा कॉमेडियन हूँ, उसके अगेंस्ट एक फाइनेंशियल मॉडल क्रिएट किया एंड ही बिकेम कपिल शर्मा, राइट? somebody wants to play cricket, he creates a model around that and he becomes Sachin Tendulkar. So you have to understand what are you good at, and then when you are expressing who you are, follow that passion and make a difference in the society and in turn make your living. और अपने बाकी सारे पर्पसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करना। अकाउंटेबिलिटी लोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और अपने कर्म करोगे। Now this karma is in line with your dharma. Now you understanding?
जब आप जो कर्म बोल रहे थे, जिन्होंने कहा था कि मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, पहले धर्म फिक्स होगा, आप अपने बेसिक नेचर को एक्सप्रेस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में जो आपने चूज किया है, नाउ दैट इज योर कर्म एंड दैट इज योर धर्म, राइट एक्शन एंड राइट पाथ। कर्मा इज राइट एक्शन, धर्म इज राइट पाथ। सही पाथ पे जा रहे हो और सही कर्म कर रहे हो। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ way of living. Okay, so let's have some people share so that I know where you are. कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो? हाँ जी, कौन बोलना चाहेंगे? हाँ जी अनीता जी। सर आपने धर्मा की जो मतलब काफी विस्तार से बताया इसके बारे में, लेकिन जैसे आप हमसे पूछ रहे थे कि इसकी डेफिनेशन, तो आपके हिसाब से मतलब मुझे हिंदी में धर्मा की 1 या 2 सेंटेंस में क्या डेफिनेशन हो सकती है, वो बताओ। सच्चित आनंद आप हो, बेसिक नेचर आपका वो है। आप स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ रहे हो, तो अभी आपका धर्म है स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना और आत्म साक्षात्कार करना, यानी कि मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, जब आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे उस दौरान ऑफ कोर्स आप कुछ ना कुछ तो करोगे ही करोगे, खाली तो नहीं बैठ सकते ना। ठीक है, तो आप कोई टीचिंग का काम कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे, जो भी कर रहे थे वो आप करते रहोगे और साथ साथ में आध्यात्मिक तौर पे आप आगे बढ़ते रहोगे। तो ये आपका धर्म है। उस मोक्ष की तरफ जाने में आप जो भी करोगे वो आपका धर्म का रास्ता है, और जो उसको रोकेगा या जो भी चीज उसको रोकेगी वो आपका अधर्म का काम करेगी, यानी कि वो माया है। माया रोकती है ना धर्म के रास्ते पे चलने के लिए। ठीक है, तो अगर आप पूछे आपका भी धर्म क्या है, आप अपनी साधना जो कर रही हैं वो आपका धर्म का रास्ता है। आप अपने आत्म साक्षात्कार करने के लिए जो कुछ कर रही हैं वो धर्म का मार्ग है, और उसके लिए आपने अपने तरीके ढूंढे होंगे कि सत्य है, अहिंसा है, इन सब का पालन करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी। आपने कुछ अपने वैल्यूज डिसाइड किए होंगे, चॉइस की होगी आपने, ये आपका धर्म का मार्ग है। और अगर आप वहां से हट गए तो वो अधर्म हो जाएगा। यानी कि अगर मैं चक्रास के लेवल पे बोलूं, व्हेन यू आर मूविंग अपवर्ड, चक्रास में कॉन्शियसनेस में अगर आप ऊपर बढ़ रहे हैं तो आप धर्म के रास्ते पे हैं, नीचे गिर रहे हैं पतन के रास्ते पे हैं तो अधर्म के रास्ते पे हैं। तमोगुण में हैं तो अधर्म का रास्ता है, सतोगुण में हैं तो धर्म का रास्ता है। तो अनीता जी क्लियर हुआ? सर ऐसा भी होता है ना, कभी कोई बंदा सतोगुण में जाकर कभी तमोगुण में भी आ सकता है, मतलब ये चल सकता है ये, मतलब किसी ना किसी बिल्कुल चलेगा। जब तक आप स्थित नहीं हो जाते, जब तक सतोगुण में स्थित नहीं हो जाते तब तक आप गिरोगे। स्पाइडर की जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी इज ऑलवेज लाइक ए जर्नी ऑफ ए स्पाइडर। ऊपर चढ़ोगे गिरोगे, फिर ऊपर चढ़ोगे फिर गिरोगे, और चढ़ते रहो गिरते रहो, चढ़ते रहो गिरते रहो। एक बार ऊपर चढ़ोगे फिर नहीं गिरोगे, उसकी वेट करो, तब तक चढ़ते रहो। राइट? हाँ, मुश्किल है, बिल्कुल बहुत मुश्किल है। और कौन गिरा रहा है मालूम है आपको? बोलते हैं माया। अभी माया पे थोड़ी देर में आते हैं, कोई बात करेंगे। तो धर्म क्लियर है सबको? धर्म का रास्ता क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचना, यानी कि मोक्ष का मार्ग जो है, मोक्ष तक पहुंचना, सच्चित आनंद को रियलाइज करना, अपने स्वरूप में आना, स्वरूप को पहचानना, ये है धर्म। क्लियर है? यस संजय। मैं थोड़ा 20 years back जा रहा हूँ कि when somebody asked me at that time, that it was like I'm a bread earner and family father of the family, right? So I had to make sure कि पैसे मैं कमा के ला रहा हूँ ताकि फैमिली और बच्चे बिल्कुल सही सलामत चले। उसमें मेरा धर्म वही था, which is bringing me peace and happiness because my family is okay. Yeah. Can it be called dharma, or was it like a concept? Yeah, but doing that, if that you make a wealth को पकड़ लेते हैं हम, है ना? So if wealth is the purpose of your life, the way how you are earning wealth will decide whether you are on the path of dharma or not. क्योंकि हमने ये कहा है स्पिरिचुअल जर्नी पे चलते हुए डिजायर्स को खत्म नहीं करना है, डिजायर्स को फुलफिल करते हुए जाना है। लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर भी साथ में लगेगा ना। ठीक है ना? तो सपोज चलो अपने रियलाइज, कोई बोलता है कि मैं मानता ही नहीं कि अगला जन्म कुछ होता है, मैं तो भैया इसी जन्म में पैदा हुआ, मेरे लिए यही जन्म है, मैं तो खाऊंगा पीऊंगा ऐश करूंगा, पैसे कमाऊंगा और मजे करूंगा। ठीक है, तो ये पर्पस ऑफ लाइफ हो गया किसी का, पैसा कमाना। यस, दैट इज हिज पर्पस ऑफ लाइफ। क्यों? उसकी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब
बहुत छोटे दायरे पे है, वो उसने रियलाइज ही नहीं किया कि वो कौन है अभी तक। नथिंग रॉन्ग इन इट, उस जन्म में वो वेल्थ एक्यूमुलेट करेगा, ठीक है। तो वेल्थ कैन बी यस ए पर्पस ऑफ लाइफ फॉर ए पर्सन हु इज मटेरियलिस्टिक, वेल्थ इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ। उस जन्म में वो कुछ और तरीके नहीं करने वाला, वो स्पिरिचुअल जर्नी में है ही नहीं। पर उस वेल्थ को इकट्ठा करने के लिए यू विल हैव टू आस्क हिम क्वेश्चन और आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, आप क्या कुछ भी करने को तैयार हैं? तमोगुण में काम कर रहे हैं तो आप तमोगुण के संस्कार लेके जाएंगे। अगर आप सही ढंग से काम करें अपने स्किल्स, और जैसे इंजीनियरिंग है या आईटी बैकग्राउंड से आप सही ढंग से नौकरी करके पैसा कमा रहे हैं या बिजनेस करके कमा रहे हैं, तो ये रजोगुण में आ गए, राइट। या फिर चैरिटी भी कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, आपने बहुत बड़ा बिजनेस हाउस खोल लिया है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, सो नाउ यू आर इनटू सतोगुण। So even in wealth, you will be moving to from tamogun to satogun, even if you are materialistic. Got it. So even that is a purpose of life. But इस जन्म में self realization नहीं होगी, तो spiritual journey पे नहीं है वो। First of all, let us understand it. वो अगले जन्म में आएगा, उसको अभी सिर्फ तमोगुण से रजोगुण से सतोगुण की जर्नी पकड़नी है, वो पकड़ेगा, धीरे धीरे करके पहुंच जाएगा। अब वेल्थ है, जैसे कुछ लोग बोल सकते हैं कि आई जस्ट वांट टू हैव फन, तो वुमेन एंड वाइन, 3 W's बोलते हैं ना, वेल्थ, वुमेन एंड वाइन। तो वुमेन एंड वाइन में घुसा हुआ है, दैट इज प्लेजर सेंटर में है, अपने साइकिल चक्रा में अपनी जिंदगी बिताना चाहता है, बिताएगा। उसमें भी he can be in tamogun where he is cheating people and then creating a lot of ruckus, police case, ये वो सब कुछ हो रहा है उसका, मार धाड़, हाँ। और he could be in rajogun, he is like a prince, अमीर बाप का रईस औलाद, सारी अय्याशी कर रहे हैं, हाँ, कुछ उसको मतलब ही नहीं है दीन दुनिया से, उसका पर्पस ऑफ लाइफ सिर्फ यही है, खाओ पियो मजे करो, रजोगुण में है वो। और फिर वो सतोगुण में भी हो सकता है, हाँ, he may not be doing anything, he is very thorough gentleman, everybody is falling in love with him and he is enjoying his life, उसमें भी तीनों कैटेगरी आ जाएंगी ना। तो even if you are materialistic, hardcore materialistic, your life is all about wealth, women and wine, still you can move through all the 3 ranges, but spiritually आगे नहीं बढ़ोगे, उसके लिए अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा। कर्मा के हिसाब से सही है। इट इज योर नेचर, जो अभी वो अपने नेचर में नहीं पहुंचा है, क्यों? क्योंकि वो माया के जकड़ में है। सो नाउ लेट अस लुक एट व्हाट इज माया। माया इज, so before I come to Maya, let me ask everybody clear, ब्रह्मन कौन है? परमात्मा, आत्मा, ये ब्रह्मन है। अल्टीमेट ट्रुथ विच नेवर चेंजेस, इटर्नल है, अजन्मा है, कभी भी चेंज नहीं होगा। ओनली वन परमानेंट थिंग इन दिस होल क्रिएशन और द सोर्स ऑफ क्रिएशन, परमात्मा इज ब्रह्मन, आत्मा एंड परमात्मा आर सेम, सो यू कैन से आई द सोल आई एम ब्रह्मन। क्लियर है यहाँ पे? तो हम ब्रह्मास्मि इसीलिए बोलते हैं, और ये बहुत प्रैक्टिकल है। तो मैं आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ब्रह्मन हूँ। क्लियर है ये? वॉट एवर इज नॉट ब्रह्मन वो माया है। तो बॉडी चेंज हो रही है, टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, माया का रिप्रेजेंटेशन है। माइंड चेंज हो रहा है, परमानेंट नहीं है, माया का एक्सप्रेशन है। एंड माया विल ऑलवेज ऑपरेट थ्रू व्हाट? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये माया डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से आती है। सिर्फ ब्रह्मन है जो निर्गुण है। माया ऑपरेट थ्रू द माइंड, इसीलिए माया हर इंसान को अलग अलग तरीके से पकड़ती है। How Maya will affect Sanjay is very different from how Maya will affect me and how Maya will affect maybe Neeta ji और कंचन जी और अमित जी। अरे देखे ना, हर किसी का एक विकार नहीं होता। कोई ग्रीड में फंसा होता है तो कोई मोह में फंसा होता है, कोई हाई में बेचारा सोच के पड़ा होता है तो कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मरा पड़ा होता है। माया अलग तरीके से आपके दिमाग को नचा के रखती है। तो your spiritual journey is to go through the Maya, तमोगुण के थ्रू, रजोगुण के थ्रू, सतोगुण के थ्रू निर्गुण तक पहुंचना है, तब आप अपने सही स्वरूप को पहचानोगे। ठीक है, पहले एक बार थोड़ा सा कंप्लीट करने दीजिए अनीता जी, फिर आता हूं आपके पास। ठीक है, तो ब्राह्मण शुड बी क्लियर, ब्राह्मण निर्गुण है, कभी चेंज नहीं होगा,
अजन्मा है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती। हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा, ये ब्राह्मण है। माया एवर चेंजिंग, हर मिनट में चेंज हो जाएगा। गुणों के अधीन है और माइंड के थ्रू काम करती है। इसीलिए माइंड को प्यूरिफाई करना जरूरी है, माया के जाल से बाहर निकालना जरूरी है, मोह माया से बाहर निकालना जरूरी है, राग द्वेष से बाहर निकालना जरूरी है माइंड को, वरना आप अपने स्वरूप को पहचान ही नहीं पाएंगे। करेक्ट? सो ब्राह्मण इज क्लियर, माया इज क्लियर। मोक्ष, जब आप अपने सच्चित आनंद स्वरूप को पहचान जाएंगे तो वो मोक्ष है। That state of self-realization where you realize who you are as Sat Chit Anand, eternal bliss consciousness, वो मोक्ष है। और इस जर्नी में अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो आप धर्म के रास्ते पे हैं, और इस जर्नी में नीचे गिर रहे हैं तो अधर्म के रास्ते पे हैं। और जो कुछ आप कर रहे हैं, अगर वो आपको ऊपर लेके जा रहा है तो वो सही कर्म है, धर्म के रास्ते पे, और अगर वो नीचे आ रहा है तो वो कर्म आपको अधर्म के रास्ते पे लेके जा रहा है। यानी कि तमोगुण की तरफ जा रहे हो तो अधर्म हो गया, सतोगुण की तरफ बढ़ रहे हो तो सही कर्म है। और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि धर्म के रास्ते पे चलते हुए आपके कर्म थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन धर्म का रास्ता सही होना चाहिए। अधर्म के रास्ते पे हो तो फिर आप सही कर्म भी करोगे तो गलत ही माना जाएगा। महाभारत का उदाहरण देके मैंने बताया था, ये सबको क्लियर है ना? तो बेशक अगर युधिष्ठिर ने बोला कि अश्वत्थामा मर गया और उसने द्रोण की डाउनफॉल उससे क्रिएट किया, वो जरूरी था, धर्म के लिए बहुत जरूरी था द्रोणाचार्य का हारना महाभारत के युद्ध में, तो वो धर्म का रास्ता सही था। बेशक कर्म थोड़ा गलत था, झूठ बोला, युधिष्ठिर ने झूठ बोला, धर्मराज युधिष्ठिर ने पहला झूठ बोला, पर वो जरूरी था क्योंकि धर्म को टिका के रखने के लिए बहुत जरूरी था। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर मैं बात करूं कर्ण की, कर्ण बहुत सही कर्म करता था लेकिन वो अधर्म के रास्ते पे था, तमोगुण में ग्रसित दुर्योधन का साथ दे रहा था, तो उसके अच्छे कर्म भी अधर्म ही कहलाए, जबकि युधिष्ठिर का वो गलत कर्म भी धर्म के पक्ष में ही कहलाया। क्यों? क्योंकि धर्म के स्थापना के लिए जरूरी था। मेकिंग सेंस? यस गौरव जी, गो अहेड। इस स्टोरी में हम युधिष्ठिर के धर्म की हम जब बात करते हैं कि धर्म के लिए जरूरी था, युधिष्ठिर ने झूठ बोला, वो किसका धर्म था? वो युधिष्ठिर का धर्म था या भगवान श्री कृष्ण जहाँ खड़े हैं वहां धर्म है? नहीं, दैट इज फाइन, बट इंस्टेड आई एम जस्ट आस्किंग, जैसे कि हम अभी जो धर्म जो अभी समझ रहे थे वो ये था कि दैट इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल, राइट, कि इंडिविजुअल का धर्म क्या है। तो यहाँ दो तरीके की हम बात कर रहे हैं बेसिकली, एक तो इंडिविजुअल धर्म हो गया और एक इन जनरल जो धर्म की स्थापना की बात हो रही है, दैट्स आई थिंक इट ब्रॉडर स्कोप वी आर टॉकिंग अबाउट। तो धर्म के मैंने भी बताया ना, तमोगुण से बाहर निकल के जो सतोगुण की तरफ जाएगा वो धर्म है। तो वो सिंगल पर्सन है, राइट, ओवरऑल इंडिविजुअल अगर आप जर्नी। देखोगे तमोगुण को मारना है और सतोगुण को एस्टैब्लिश करना है, दैट इज व्हाट महाभारत इज। Duryodhan was symbolic of Tamogun and everybody siding with Duryodhan was in path, standing in the line of Tamogun. उनको हटाना ही था। जहां श्री कृष्ण के साथ थे, जो पांडवों के साथ थे, वो सतोगुण में स्थित थे, इसलिए उनको एस्टैब्लिश करना ही धर्म का मांग था। That is how the story goes. If you see that symbolic representation. तो अभी भी धर्म की डेफिनेशन वही है कि तमोगुण से निकल के सतोगुण में जाना। पर आई थिंक वो उसका एंगल डिफरेंट है। Anyway, let's not get into that discussion. Let's look into our life then. Right. हाँ, don't get into confusion, वो ये तो छोड़ दो, वो चीज पकड़ो जो क्लैरिटी है। अब वो तो सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको ये बताने के लिए कि सही धर्म और सही कर्म क्या है। हाँ, मे बी उस पे शायद अलग ही थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो वहाँ पे धर्म की डेफिनेशन इसलिए क्लियर थी क्योंकि जहाँ भगवान खड़े हैं वहाँ धर्म है, सिंपल है। हाँ, वो कह सकते हैं। इसलिए पांडव धर्म के पक्ष में थे और कौरव अधर्म के पक्ष में थे, तो उनको स्थित करना जरूरी था। Anyway, we will not get into that. If that is causing you confusion, leave it. Talk something else. But everybody else is clear on this? Yeah, I just wanted to use this opportunity and summarize my understanding. So, एक
एक विशाल समुद्र है, ओके, और मैं उसमें स्विमिंग कर रहा हूँ, राइट, एंड आई एम द सोल। वो समुद्र है, वो माया है, ओके, एंड आई हैव टू गो, लेट्स से फ्रॉम सिंगापुर टू चेन्नई, Madras, right? If I'm swimming in that direction, I have to find out the correct direction using the compass, supposing your map. So the map which can take me to that direction is any action or any swimming in this Maya without getting attached to Maya, continuously swimming. Otherwise, I'll get sunk in that Maya. और मैं स्विम करते हुए वो कंपास लेके जाऊंगा, एंड माय कंपास इज कि मुझे जो भी एक्शन तमोगुण से रजोगुण या सतोगुण की तरफ ले जा रहा है। आई थिंक व्हाट आई एम गेटिंग इनटू, इज इट राइट? और हाँ सही है ना, तमोगुण से सतोगुण की तरफ जा रहे हो, जो मर्जी डेस्टिनेशन आपका क्लियर है, चेन्नई से दिल्ली ले लो, जहां मर्जी ले लो, कुछ भी ले लो, इस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि मेरे को वो गोल पे चेन्नई पहुंचना है स्विम करके। साउथ से नॉर्थ पकड़ो, बिकॉज दैट इज हाउ वी आल्सो अंडरस्टैंड कि रूट चक्र से क्राउन चक्र की जर्नी साउथ से नॉर्थ की है, नीचे से ऊपर तक, राइट? सो दैट्स द करेक्ट धर्मा, दैट्स द पाथ व्हिच आई नीड टू फाइंड, व्हिच इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम सिंगापुर टू, लेट्स से, चेन्नई, बाय स्विमिंग मायसेल्फ इन दिस समुद्र ऑफ माया। करेक्ट। माया विल ऑलवेज स्टॉप यू एंड थ्रो यू ऑफ द ट्रैक, सिंपल है, वो तमोगुण की तरफ गिराएगा आपको। माया इज अट्रैक्शन ना, माया विल एंगल्फ यू, इल्यूजन है, और वो आपको तमोगुण की तरफ लेके जाएगा, यानी कि अधर्म के रास्ते पे लेके जाएगा। माया का नेचर ही ये है ना, माया तो क्रिएटेड ही इसलिए है, इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, सो दैट यू आर नॉट रियलाइजिंग योर नेचर। व्हाटएवर स्टॉप्स यू इन रियलाइजिंग योर रियल नेचर, दैट इज माया। मेकिंग सेंस? या, दैट्स द परसेप्शन आई हैव कंस्ट्रक्टेड हियर। तो सबसे पहले ब्राह्मण, यू आर ब्राह्मण, एंड अपने रियल नेचर को पहचानने में जो कुछ रुकावटें हैं, दीज आर क्रिएटेड बाय माया एंड दे एक्ट थ्रू द माइंड, थ्रू द थ्री गुणास। दैट इज द राइट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना? अब इसको पार करके आ जाना है आपको, तो आपको मोक्ष मिलेगा, विच इज सेल्फ रियलाइजेशन। बट ई सेल्फ रियलाइजेशन और मोक्ष द लास्ट स्टेप? नो, दैट इज द बिगिनिंग। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी उसके बाद शुरू होगी। That is when you reach your maximum potential. That is where you will be taking an accountability to change the whole universe or the whole world. तब आप contribute कर सकते हो, जैसे अमित जी हमारे मेंटोर हितेश जी करते हैं, right? He is taken up a project जहाँ पे सतयुग आना ही है, and he says that with such a clarity and conviction कि ये तो हो चुका है, मतलब it's already done, अब सिर्फ manifest करना बाकी है, वो हो जाएगा, he knows, right? So that kind of accountability and power will come only when you are reach that self realization state. वरना आप छोटी छोटी गेम खेलोगे, मैं, मेरी बीवी, मेरे 2 बच्चे, मेरी जॉब और मेरे, that's the end of it. बहुत छोटी गेम है ना एक ह्यूमन लाइफ के लिए, क्योंकि आप 5% अपनी पावर को पहचान पाए हो। सेल्फ रियलाइजेशन के स्टेट पे पहुंचो जहां आप अपने इनफाइनाइट पोटेंशियल को पहचानोगे, फिर आप करोगे वर्ल्ड के लिए कुछ, तब आप गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाओगे या गॉड ऑफ हीलिंग कहलाओगे। So like that. Just only coming to you once again. So everybody clear on this? Self-realization is not the last step of spirituality. It is the beginning of spirituality. उसके बाद आपकी real spiritual journey शुरू होती है. After self-realization. That's what Swami Vivekananda said. जब रामकृष्ण परमहंस से उनकी बातचीत चल रही थी, उन्होंने कहा तुम क्या करना चाहोगे? कह रहे थे मैं आराम से जाऊंगा हिमालय में और आराम से तपस्या करूंगा, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगी, मजा आ जाएगा, आई विल बी इन ब्लिसफुल स्टेट। एंड ही सेड व्हाट द हेल, इसके लिए थोड़ी ना तुमको सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए, यू आर हियर टू चेंज द होल वर्ल्ड, यू आर सपोज टू गो टू यूएस एंड चेंज दैट, ये है तुम्हारा पर्पस। दैट केम लाइक ए लाइटनिंग टू हिम, देन ही रियलाइज ओके, कहते ये तो तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई है अभी, तो भगोड़ा नहीं बनना है, जंगल में जाके बैठना नहीं है, हिमालय पे जाके बैठना नहीं है, दुनिया में आओ, वापस कंट्रीब्यूट करो। Your journey has just started, and that is when he woke up, and in a short span he created miraculous results in whatever he did, right? So that is what I'm trying to say. Yes, Tony, go ahead. Yeah, I just wanted you to clarify one statement that you used, कि अगर आप धर्म के रास्ते में कोई गलत कर्म करते हैं, वो
फिर भी शायद अधर्म माना जाता है। नहीं, वो धर्म माना जाएगा। हाँ सॉरी, धर्म के रास्ते पे आप गलत कर्म कर सकते हो, मैं ये बोला था, लेकिन उस पर डिस्कशन अभी ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। हाँ, सो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट कि अगर आप धर्म के रास्ते में कोई गलत कर्म करते हो वो धर्म ही माना जाता है, हाँ, और अगर अधर्म के रास्ते में कोई सही कर्म करते हो तो वो अधर्म ही माना जाएगा। हाँ, राइट? हाँ, एग्जाम्पल मैंने दिया था जैसे कर्ण का है। कर्ण Yeah. बहुत अच्छे कर्म करता था, he was a very nice person. Only thing is he was siding with Duryodhan, so he was on the path of adharma, so he had to be removed. Correct. Okay. And similarly, when Yudhishthir told a lie, which led to the downfall of their Acharya, Dronacharya, it was a wrong act. Everybody would say it is a wrong act, but it was necessary to establish dharma. क्योंकि द्रोणाचार्य को वहां से हटाना जरूरी था। Get that? या जैसे कोई मान लो छोटी सी पॉलिटिकल सिचुएशन अगर मैं बताऊं, कोई हिटलर है जैसे, he was creating lot of terror and तो हिटलर को रोकना जरूरी था, तो एटम बम डालना जरूरी था। I'm just giving a perception from that point कि what was right, वर्ल्ड वॉर 2 को रोकना जरूरी था, हिटलर को रोकना जरूरी था, और जापान बहुत ज्यादा उस समय एग्रेसिव था, तो 2 बॉम्ब डाले, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। बॉम्ब डालना गलत था, बिल्कुल गलत था, लेकिन उस समय वार को रोकना ज्यादा जरूरी था। गेट माय पॉइंट? एंड फेसिस पावर्स जो उठ रहे थे उनको रोकना जरूरी था। तो एक तरीके से देखा जाए तो दैट वाज रॉन्ग एक्शन, बट अगेन द पर्पस वाज राइट टू सेव द ह्यूमैनिटी। दैट वॉर हैड टू एंड। 5 साल से चल रहा है वॉर, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसको रोकना जरूरी था। 2 एटम बम डाले हिरोशिमा और नागासाकी में, डिस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन वॉर रुक गया। Wrong action, but it can be considered as the right path of right dharma. Now it can be debatable, that's why I don't want to get into these examples again and again. So don't push me there. इसका हमेशा debatable होगा ही। मैं हाँ बिल्कुल ठीक है, because we are talking about two things here. I think this basically this today's topic is to talk about individual dharma. और जो examples पे हम discussion कर रहे हैं, that is I think having a broader scope. But everywhere you are in a society, and what is right, what is wrong is decided by society also, ना? Exactly. तो जब हमने discussion start किया था, we were actually saying there is nothing right and wrong. We are talking about individual dharma. जब society की बात आती है तो right भी हम उस हिसाब से बोल रहे हैं कि what serves you in your journey, that is right. What doesn't serve you in the journey, that is wrong. Right and wrong, otherwise कुछ नहीं होता। तमोगुण is not wrong, सतोगुण is not right. तो right and wrong की बात नहीं कर रहे, ठीक है? बट अपने आप को एस्टैब्लिश करना है अगर धर्मा में, तो फर्स्ट इंडिविजुअली यू हैव टू मूव टू योर सेल्फ रियलाइजेशन स्टेट, एंड देन व्हेन यू टेक द होल कम्युनिटी टू सेल्फ रियलाइजेशन स्टेट, अपने सही नेचर में लेके जाओगे तो कॉन्फ्लिक्ट आएंगे ना, वर्ल्ड विल नॉट बी रेडी फॉर इट। So you have to look at it from a society point of view also. जो इंडिया के लिए सही है पाकिस्तान के लिए सही नहीं होगा। You have to understand that. So what is dharma for India or Indians may be adharma for Pakistan. So there is no right or wrong there. It is only a context of कहाँ पे हो आप। But as far as human being is concerned, human being का धर्म क्या है? To realize your state. तो इसीलिए मैं एग्जाम्पल्स में ना घुस के मैं सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे ही बात करूंगा। अभी आपके इंडिविजुअल लेवल पे आप अपनी लाइफ में देखिए, ठीक है? सेल्फ रियलाइजेशन स्टेट तक पहुंचना ही आपका धर्म है। नंबर 1 फिनिश्ड। लेट्स नॉट गेट इनटू द राइट पाथ एंड द रॉन्ग एक्शन, वो हम लॉ ऑफ कर्मा में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले, सिर्फ एक पासिंग रेफरेंस दिया था, आप लोग उसी में अटक गए हो, तो छोड़ दो उसको। हाँ जी, आगे बढ़ो। एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? Yes, Leslie, you have come a bit late. If anything you want to share later on, yeah. Anita ji, go ahead. सर आपने एक बात कही है कि वे ऑफ अर्निंग मस्ट बी राइट। राइट का मतलब क्या है? तमोगुण नहीं होना चाहिए, सतोगुण होना हाँ चाहिए। मतलब वही मैं आपसे बात कह रही हूँ कि वो सतोगुण के द्वारा अच्छे तरीके से कमाई गई अर्निंग जो होती है वो हमारे परिवार के लिए ज्यादा प्रॉस्पेरिटी और लेकर आती है, ठीक है? लेकिन जैसे कुछ लोग गलत तरीके से जो पैसा कमाते हैं। ये आप तीसरी बारी बोल रही हैं अनीता जी।
सर लेकिन अभी प्रोग्राम में आप ये बोल चुके हैं और मेरे से अलग से बात भी कर चुके हैं। प्रॉब्लम क्या है बताइए, किसकी बात कर रही हैं? नहीं, मैं वो बात नहीं कर रही सर, वो जो मेरी कल आपसे बात हुई है फोन पे उससे वो बात नहीं मैं कर रही। हाँ। मतलब मैं कह रही हूँ जो अभी जो लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और वो अगर पैसा डोनेशन देते हैं कहीं पर मंदिर में या कहीं पर भी देते हैं, तो जैसे हमें समझाया जाता है कि सोर्स ऑफ इनकम जो हमारा प्योर होना चाहिए सतोगुण के हिसाब से, तो वो अगर तमोगुणी के हिसाब से, जैसे वो कोई गुटखा की फैक्ट्री है वट एवर द थिंग, वो कमा के वहां पे डोनेट करते हैं, तो वो पैसा फिर वहां पे जाके सही कैसे हो जाता है? वो धर्म का पैसा सही कैसे नहीं होगा। उन्होंने पैसा जहां से कमाया वो गलत है, वो गलत कर्म में ही जाएगा। और अगर उन्होंने डोनेट किया उसका बेनिफिट भी उनको अलग से मिलेगा। पैसा काला नहीं होता है, मन काला होता है। अच्छा नहीं, वो जैसे हम ब्लैक मनी बोलते हैं ना, ब्लैक मनी को ब्लैक मनी डोनेट काला, कर पैसा काला नहीं होता, वही तो मैं बोल वो रहा तो हूँ। मुझे पैसा पता है कमाने का सर। तरीका गलत होता है हाँ। तो उसका उसको फल मिलेगा ना। मान लो उसने किडनैप किया या ड्रग्स बेचे, उसके बाद उसने पैसे कमाए, तो उसका फल उसको मिलेगा बाद में। पर उसने डोनेट भी किया, उसका फायदा भी मिलेगा उसे बाद में। कुछ 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 आत्माओं ने उसे दुआएं दी है ना। हाँ ठीक है। तो वो दुआएं अलग मिलेंगी, यहाँ से बददुआएं अलग मिलेंगी। दोनों काम होंगे। यूनिवर्स तो बराबर देगा। बहुत बढ़िया गाड़ी देगा और उस गाड़ी को बिठा के उसका एक्सीडेंट करा के उसकी टांग भी तोड़ देगा। कुछ ना कुछ करेगा। तो कैसे करेगा, यूनिवर्स को छोड़ दो ना। ठीक है। ठीक है। हाँ, अब दोबारा तो नहीं पूछेंगे ना, कोई गलत तरीके से काम करे तो क्या होगा? सर अगर कोई क्यूरियोसिटी होगी तो जरूर पूछूंगी, मैं स्टूडेंट हूँ और मैं टीचर भी हूँ। जब तक मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते फिर मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछती हूँ, बिकॉज आई एम वेरी गुड स्टूडेंट ऑल्सो। चलिए, गुड गुड, मजाक कर रहा था। यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। हाँ जी, पर सबको क्लैरिटी मिली इसमें। तो कर्म अगर आपके गलत हैं तो आपको रिजल्ट उसी हिसाब से मिलेंगे, और अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छे कर्म के फायदे भी आपको अलग से मिलेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ न्यूट्रलाइज नहीं होगा। अच्छे कर्म बुरे कर्म को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे। अच्छे कर्म का अलग फायदा मिलेगा, गलत कर्म का अलग, उसका नाप तोल के अलग से आपको रिजल्ट मिलेगा। हाँ जी नीता जी, आप कुछ बोलना चाह रही थी? नो, दैट्स फाइन। एनीबॉडी एल्स? कौन बोलना चाह रहे हैं? सो एवरीबॉडी क्लियर? हर चीज के लिए तथास्तु। तथास्तु तो अगर आप कुछ मांगोगे तो होगा। और अगर जो आप यूनिवर्स करोगे को कुछ उसका भी तो बोलते हो। तथास्तु। इसका जो करोगे वो भी तो तथास्तु। तथास्तु नहीं, डिजायर अगर होगी तो तथास्तु मिलेगा ना। If you, when you are asking something from the divine will only reply in tathastu, that's it. और वो Maybe I शुरू think तो Leslie is saying उसी लेवल the पे। desire of doing something, उस पे तथास्तु की बात कर रहे हैं शायद लेस्ली। बिल्कुल, अगर आप कुछ भी करोगे, कोई भी डिजायर चाहते हो आप, तो उसमें तथास्तु मिलेगा ही मिलेगा। That is only one language. Universal laws को follow करो। Universal laws are तथास्तु। Law of karma, law of intention and desire, whatever it is. Law of giving and receiving, everything is a तथास्तु only. उसको follow करो। Law of gravity. वो नहीं, मैं अनीता का समझा रहा था जिस चीज के लिए आप कह रहे थे, तो मैंने कहा वो हर चीज के लिए तथास्तु। अच्छा होगा तो अच्छा तथास्तु होगा, बुरा होगा तो बुरा तथास्तु। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, राइट। यस, कोई बोलता है ना कि मैं ये नहीं कर सकता, तथास्तु, नहीं कर पाओगे। मैं ये कर लूंगा, तथास्तु कर लोगे, सीधी सी बात है। सो व्हाटएवर यू से यू ओनली गेट अ तथास्तु फॉर दैट फ्रॉम द गॉड। यस, और कौन बोलना चाहेंगे? तो थिंग्स शुड बी क्लियर फॉर एवरीबॉडी, राइट? हाँ, क्योंकि हम सारे डिफिकल्ट कंसेप्ट्स को लास्ट मिनट के लिए, जो कल्मिनेशन हम जैसे बोल रहे थे, उस हिसाब से चल रहे हैं। तो लॉ ऑफ धर्मा को अगर आप देखेंगे तो लॉ ऑफ धर्मा विल आल्सो स्टार्ट फ्रॉम लॉ ऑफ बीइंग। जो हमने देखा था यूनिवर्सल लॉस को, अगर हम देखें सारे यूनिवर्सल लॉस यहाँ पे अप्लाई होंगे, राइट? तो लॉ ऑफ बीइंग अप्लाई होगा, लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग अप्लाई होगा, क्योंकि जिस हिसाब से आप दे रहे हैं दुनिया में यूनिवर्स को, जैसा ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, कैसा आप फॉरगिवनेस दे रहे हैं, उसी हिसाब से आपको लाइफ में वापस रिटर्न्स मिलते हैं। लॉ ऑफ कर्मा लगेगा, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट लगेगा, देन लॉ ऑफ डिटैचमेंट होगा, लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर होगा, सब कुछ अप्लाई होगा। And then you are moving forward on the spiritual journey. तो concepts clear हैं सबको? Anything on dharma which is not clear? कर्मा तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। मोक्ष क्लियर है? What is मोक्ष? माया क्लियर है? What is माया? Okay. So let me share a small story. माया पे जब बात होती है तो एक छोटी सी स्टोरी is often mentioned.
which is the story of Shri Krishna and Narad. तो नारद मुनि आप जानते हो, तो नारायण नारायण बोल के चल रहे होते हैं विष्णु जी के साथ। तो बड़े खुश हो जाते हैं, विष्णु जी भी अच्छे मूड में होते हैं, बोलते हैं हाँ जी नारद जी जो कुछ आप मांगना चाहते हो तो मांग लो, आज मैं बहुत रिलैक्स मूड में हूँ, काइंड ऑफ अ स्टोरी। सो यू टू अंडरस्टैंड दिस एज अ डायलॉग बिटवीन देम। तो नारद जी बोलते हैं मुझे माया के बारे में बता दो, तो कोई और सवाल पूछ लो। आज समथिंग एल्स, नॉट पॉसिबल। कहता है आपसे नहीं सीख पाऊंगा माया तो फिर मेरे को कौन सिखा सकता है, तो एक्सप्लेन मी माया। तो वो फिर उनके भी बताने का तरीका अलग है। कहते हो एक काम करो, पहले मेरे को प्यास लग रही है, सो टेक दिस जग एंड यू नो एंड गो एंड फेच सम वाटर फॉर मी। आसपास कहीं रिवर होगा तो वहां जाओ और मेरे लिए पानी लेके आओ। कहते ठीक है। कहते उसके बाद बताओ, क्या हाँ उसके बाद बताओ। सो ही गोज देयर, नारद गोज देयर एंड he tries to get some water। देखते हैं पानी थोड़ा सा यहाँ पे खराब आ रहा है ना, थोड़ा सा मिक्स्ड होता है। तो he tries to get into the 5-6 फीट अंदर जाके वहां से पानी भर के ला दो। तब तक क्या होता है, तो करंट becomes very very strong, he didn't realize it and he gets swept away। तो नारद जी पानी में बह गए, पानी बह जा रहे हैं। now he is desperate, क्या करूं। then he desperately clings on, काफी देर तक स्ट्रगल करते रहते हैं, काफी दूर पहुंच जाते हैं। then he clings on and finds something to hold on to। जब थोड़ा सा पानी का प्रेशर कम होता है या करंट कम होता है, then he tries to swim across and then goes to some shore, जो लैंड होता है वहां पे, न्यू प्लेस, nobody to find and he's very very tired and all। तभी देखता है कि एक लेडी वहां से जा रही हैं, तो she comes कि are you okay, are you fine। तो नारद जी gets talking to her, बात करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे he finds her very attractive, तो he accompanies her, goes to her place, has lunch and all that। वहाँ पे खाना वाना खिलाते हैं। वहाँ कोई ऋषि की एक बेटी होती है, वो he falls in love with her, he proposes and then he, you know, the marriage happens and he's happily living there as a husband wife, आराम से जी रहे होते हैं वो, and time passes very fast। तो 1 साल 2 साल 5 साल, he has now 2 children, he's living happily with his wife। and एक बार वहाँ पे बहुत बड़ा एक रिवर में फ्लड आ जाता है, and they are all living near to the river bank, correct। तो रिवर बैंक से पानी बहता हुआ आता है, and then one night the whole area is flooded। Now Narad is in real trouble। वो वाइफ को और बच्चों को लेके now he is trying to swim and come back। धीरे धीरे पानी बढ़ता जाता है and करंट बहुत तेज होता जाता है। तो एक बच्चे का हाथ छूट जाता है and starts crying। दूसरे बच्चे का हाथ छूट जाता है, वो भी चला जाता है। Finally वाइफ का भी हाथ छूट जाता है and then he is desperately trying to survive himself। बहुत मुश्किल से कोशिश करके हताश होके किसी तरीके से शोर पे आता है। then he comes out, सांस लेता हुआ हाँफता हुआ ऊपर उठ के देखता है, तो वहाँ पे महाविष्णु खड़े होते हैं कि तुम पानी लेने गए थे, कहाँ चले गए थे, राइट। एंड कहते हैं what happened to my glass of water। he gets up and he says, कहता half an hour has passed, I was waiting for you, where have you been। कहता oh my god, so what was all this। कहता this is Maya। so you have to understand, it is all an illusion। it will take you, sweep you away and you will be completely engulfed in it and you will think, you know, as if the whole thing, कितने साल बीत गए, कितने क्या बीत गए, जैसे ड्रीम्स में होते हैं हमारे। and then you wake up and you say हाँ मैं 2 घंटे से सो रहा था। that is the way you understand Maya। it is an illusion, nothing is real, but it will sweep you away। so the whole life, even the waking, जैसे ड्रीम वर्ल्ड माया है, वैसे ही waking world भी माया है। that is what the learning is from this Vedanta story। जो waking world है वो भी माया है। once you are awakened, when you are self realized, you will understand जितना dream world illusion है, उतना ही waking world भी illusion है। and that is the beauty of Maya। you don't realize it when you are stuck in it। जैसे ही बाहर निकलोगे पता लग जाएगा, अरे ये तो गेम था। it's like a movie। like in 3 hours you see what शोले, you find साला अच्छे खासे दोस्त भी थे, स्टार्टिंग सीन भी बढ़िया था, बाद में जाए मर भी गया। everything happened in 3 hours time।
and actually you come out and say nothing has happened. It was all a story, right? So that is how you look at Maya. So that is a good reference of what Maya is. So if you want to know, you will read this story. काफी जगह पे है ये, तो अगर आप YouTube वगैरह में ढूंढोगे माया की story, तो you will get this story. Yes. So everybody clear about what Maya is? Any questions? Anything that creates an illusion and takes you away from the path of dharma, that is Maya, and it is designed for that. माया बनाया ही इसलिए कि आप अपने रियल नेचर को ना पहचान पाओ. That is when the journey is tough, right? वरना इतना सिंपल होता तो फिर मजा क्या आता गेम को. So God has made the whole game a bit tough. Life is a game. It's a tough game. So you have to see through the Maya and reach self-realization. That is the journey. Okay. तो कौन सवाल पूछना चाहते हैं? अनीता जी, स्टोरी समझ में आई? क्या सीखा स्टोरी से? नारद की स्टोरी से क्या समझे माया? माया क्या है? कौन बताना चाहेंगे? Anybody? Any questions? Anything you want to share? Yeah, नीता जी. So जो इससे सीख है वो ये है कि अपना जो धर्म है उस पर फोकस्ड रहना है. माया आएगी, ट्रबल करेगी, उससे बाहर भी निकलना है. उससे वो जो ध्यान है उससे नहीं हटना, इसको भी जूझना है, इसको भी समेटना है, बट वो फोकस वहां पे जरूर रहना चाहिए. The ultimate goal is that only. Absolutely. So this is Absolutely what perfect. is the learning. Perfect. Participate in life. Relative world जो है आपका, waking world जो है, आप participate तो करोगे ना. बॉस है सामने तो ये नहीं बोल सकते ना तू माया है, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा. नहीं, बात करनी पड़ेगी. बॉस है वो, नौकरी कर रहे हो आप, जॉब कर रहे हो, बीवी है, बीवी अगर नाराज है तो उसको मनाना पड़ेगा. बोल नहीं सकते माया है, छोड़ दो. नहीं, you have to do that, but realize it that it is all a game. Don't get too much attached with it. जैसे बोलते हैं, don't get serious in life. Nobody has got out of this place alive. तो लाइफ को बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है. कोई जिंदा बच के नहीं गया आज तक यहाँ से. So this is Maya. If you understand this, then you are out of the Maya. Yes, Sanjay, go ahead. Yeah, I will still stick to my swimming pool example, you know. So मतलब कि उसके ऊपर से उड़ के नहीं जा सकते, आपको उसके अंदर swim करके ही जाना है, बच नहीं सकते. You have to deal with it and still make sure that you are set course right for your final destination, right? Yes. And, अभी जो एग्जाम्पल नारद जी वाला था उसमें भी पानी और स्विमिंग ही आ रहा था, बट मेरा दिमाग कहीं एक और जगह गया. आई एम श्योर यू ऑल प्लेड वर्चुअल रियलिटी गेम्स, राइट? जो माइक्रोसॉफ्ट ने थैंक्स टू माइक्रोसॉफ्ट आजकल एक 3D शीशा टाइप स्पेक्स आप लगा लो, and then you get in for half an hour with the kids, you know, and you are just standing on a platform और उसमें आपके images के सामने वो zombies आते हैं, you have to keep on shooting it, right? Shooting at them. तो ये आजकल नया game शुरू हुआ है, and you keep on jumping up and down on the helicopter. So and you are immersed in it totally as if it's real, and although shooting is against your nature, basic nature, still you end up doing it. I have a first game. Or the biggest sensation comes or revelation comes when you take out that goggles or the specs and you realize that you have been standing on an empty floor. There was nothing like that. There was no helicopter. There were no zombies coming. There is no gun, and you were just moving up and down like this. So this story reminded me exactly of that virtual game. Everything will stop when once you just remove the specs. So you have to be wise enough and विवेक यूज करके अपना कि वो right filter या right specs निकाल दो goggles and see the world with that see the Maya in reality, not in that get absorbed in it. Very good example. So virtual reality जो है सब माया है, right? उस समय तुम बहुत कुछ इन्वॉल्व हो सकते हो, बाहर आके देखो अरे यार ये तो कुछ था ही नहीं. और समटाइम पहले तो मूवी हॉल में जाते थे ना, तो मूवी भी हो सकता है. पहले मूवी में इतना इन्वॉल्व हुए थे तो आंसू बह रहे हैं जी, हीरोइन नहीं मिली, उसने सुसाइड कर लिया, ये हो गया वो हो गया. हुआ क्या, 3 घंटे में खत्म हो गई मूवी. यू वेंट देयर टू गेट एंटरटेन एंड यू केम आउट क्राइंग. वहां पे भी फंस गए माया में. So you have to understand, you're getting attached to a movie also. Movie is for fun. Thriller है तो भी कोई बात नहीं, डरावनी मूवी है तो भी कोई बात नहीं, एंजॉय करो.
and you actually enjoy that if you know that it is a movie. लेकिन लाइट वाइट ऑफ कर दें, अचानक वहां पे रख दें और पीछे से अगर भूत की मूवी देख रहे हो तो you will get a shock if somebody calls you. पीछे से हाथ रखा चिल्ला चिल्लाओगे तो भूत आ गया, kind of a thing. You don't understand. These are the how you get attached to it, right? So that is Maya for you. So everybody knows Maya is going to throw you off the track, will make you forget what is dharma. So come back, फटाफट वापस आओ, अपनी लाइफ के जर्नी को पकड़ो, सेल्फ रियलाइजेशन पहुंचना है, अकाउंटेबिलिटी को पहचानना है, और फिर देखो लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो. क्यों? नाउ यू आर वर्किंग एट द हाई 100% पोटेंशियल, अपने इनफाइनाइट पोटेंशियल को आप पहचान चुके हो. नाउ यू विल डू ग्रेट थिंग्स, एंड दैट इज द स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्टिंग वहां से. सो दिस इज वेयर आई विल लीव यू इन द वेदांता प्रोग्राम. All of you are on the path of self-realization. All of you are WIP. You are all divine. You have infinite powers. उसको realize करो और फिर ऐसे project पकड़ो which will make you proud and give you magical results in your life. And rest assured, all your desires will anyway get manifested. आपके desires वैसे भी manifest हो ही जाएंगे जैसे जैसे आप self-realization के stage पे जाओ. Desire divine. All the other desires will be fulfilled. Because desire for the divine will give you detachment. सब चीजों से डिटैच हो जाओगे, सारी अटैचमेंट खत्म हो जाएगी. Surrender to divine and divine will take care. And with divine grace you will attain self-realization. So that is the path of Vedanta wisdom, and this is where I would like to leave you all for a happy spiritual journey for self-realization. Right? Good. So before we end, anybody who wants to share something, anything you want to ask? Because you come to the schedule time. Schedule time भी हो गया है. I wanted to say my understanding of that story, which you at the end you said. Yeah. And that is that we, realizing that we are Brahma, and like realizing that we are forever present. हम कहीं ना कहीं भूल गए. और realizing that we are सच्चितन आनंद, हम उस चीज को भूल गए. हम कंटिन्यूसली इतने जिंदगियां, इतनी लाइफ्स लिव करने लग गए उस चीज को खोजने के लिए. एंड वी वेंट इनटू माया, रिश्ते, नाते, वस्तु, इन चीजों में खोजने लग गए. देन फाइनली रियलाइजिंग में हमेशा यही था, कहीं मेरे को जाना नहीं, कुछ नहीं करना. सो यू एंड द जर्नी हियर एंड नाउ ओनली इन दिस wherever you are. So that is the realization, and that is what for me that story was. Absolutely. कहीं पे भी आप समझ जाओगे कि माया है तो आप बाहर आ जाओगे. लेकिन जब तक माया में हो, you will, like Sanjay said, you will have to keep swimming till you reach the other end. But the moment you realize this is all Maya, you can simply come out. पानी है ही नहीं वहां, आप बेकार में स्विमिंग कर रहे हो. Just come out, it's all gone. Correct? तो सही नजरिया, इसीलिए विवेक बोलते हैं. विवेक इज व्हाट? द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज इल्यूजन. इल्यूजन को छोड़ दो, रियलिटी को पकड़ो. एंड यू, आई एम द रियलिटी. ना ये सच ना वो सच, मैं सच. नाउ यू आर एस्टैब्लिश्ड इन ब्रह्मन. खत्म हो गया, माया का जाल ही खत्म हो गया ना. नाउ यू कैन स्टॉप स्विमिंग. करेक्ट? रियलाइजेशन आ गई, फिनिश्ड. नाउ यू आर अवेयर. That is how it is. And then the moment you become a Jivan Mukta, you get 3 benefits. Anybody who remembers the 3 benefits of Jivan Mukta? You are free from all suffering and miseries. You are free from all dukkha, in short. Then you are free from all the desires. And then you are free from the fear of death. And then you live your life with full passion, with full love, freedom, and vitality. And you are ready to take on the world and to contribute to the world and to transform the world. That is the real purpose of life. That's your dharma. To be established in your real nature of Sat Chit Anand and contribute to humanity in such a way that you create magic and miracles every moment of your life. Right? Any other questions? Yeah, one question. Yes. शशि जी, एक बार आप जरा रिकैप में बता दीजिए कि सीक्वेंस में जैसे हमने क्या था, और लाइक एक कंक्लूजन टाइप ऑफ दिस होल प्रोग्राम, लाइक ऑल द लॉज दैट. सी लॉस तो हमने यहाँ पे ज्यादा किए नहीं है.
बट वेदांता में जो हमने बेसिकली रिकैप किया था वो अगली बारी हम करेंगे. नेक्स्ट सैटरडे वी आर मीटिंग वेयर वी विल डू ए क्विक रिकैप ऑफ व्हाट ऑल वी डिड इन द लास्ट 11 सेशंस एंड वी विल आल्सो हैव सम एक्सपीरियंस शेयर. Okay. ठीक है ना. बट दैट विल बी नॉट द, इट विल ओनली बी ए मेंशन ऑफ द टॉपिक्स, क्योंकि हाँ. अगले वीक में हम वी आर गोइंग टू इनवाइट ऑल द गेस्ट्स आल्सो, राइट? Right. We can't discuss the intricacies of the program Correct. Mhm. or the secrets of the program, but then yes, what you will be sharing is your benefits that you have got. So that will be a good session. So all of you will be there and you can invite your guest, and I hope all of you will be inviting at least one guest from your life. हाँ, एक गेस्ट को बुलाना कोई मुश्किल नहीं है. सब लोगों की लाइफ में एक जना है ना जिसको आप चाहते हैं कि वो लाइफ में कुछ बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन लाएं, तो उनको बुलाओ इस प्रोग्राम में. And you can rest assured in the next 11 sessions they will create magic and miracles in their life. That is my guarantee to you, right? Just like you people did it, they will also do it, right? So with this we come to the end of the session. Anybody who wants to share in the last 1 minute? Everybody through? I just Fulfilled? wanted to thank each and everybody, thank you. Great. So let's thank everybody. सब लोगों का contribution है, co-creators हैं एक दूसरे की destiny में. So all of us are playing a huge role, and of course we will be doing that in the last session in the next Saturday. So next Saturday is going to be the final grand finale. ठीक है जी? Right. So with this we come to the end of the session. Thank you very much. Enjoy a great day. Enjoy a great week. Thank you. Aham Thank you, Brahmasmi. everyone. Aham Brahmasmi. Brahmasmi. Brahma.